ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏ ਮਲਾ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ ਇਤਿ ਅਰਦਾਸ ਆਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਆਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਓੰਕਾਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ ਘੂੰਘਟ ਖੋਲ ਚਲੀ ਸਾਸ ਦੀਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕ ਟਲੀ ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ ਘੂੰਘਟ ਖੋਲ ਚਲੀ ਸਾਸ ਦੀਵਾਨੀ ਬਾਵਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੰਕ ਟਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਈ ਲਚੰਦ ਪ੍ਰੇਮ ਬੁਲਾਈ ਰਲੀ ਸਿਉ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਰਤੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਈ ਲਚੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਉਪਾਗੀਓ ਤੰਤਾ ਜੋਗੋ ਜਗ ਤਾਰਕ ਜਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਿਓ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਕਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਕੇ ਉਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਨਾਮ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਤਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਸ੍ਰੀ ਕੋਦੀ US ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ 8:45 50 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਪਤ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ ਚੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਪਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 12। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਮੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ, ਘੂੰਘਟ
खोल चली, सास दीवानी बावरी, सिर ते संक टली, प्रेम बुलाई रली स्यों, मन में शब्द आनंद, लाल रती लाली पई, गुरमुख पई निचिंद। ਇਹ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 931 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਕਲੀ ਦੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਤੇ 927 ਤੋਂ 938 ਤੱਕ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 54 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। 54 पौड़ियां एक राव दी पंक्ति। जिस तरह असी बाणी सुखमनी साहब जी विच देखते हैं, 24 अष्टपदियां 24 श्लोक एक राव की पंक्ति। ये जिहड़ी गुरु पातशाह की एक विलखण ढंग, एक निराला तरीका गुरबाणी नूं सारे संसार नूं पेश करन दा। और असी सारे जानते हाँ रहाव की पंक्ति उस शब्द दा, उस बाणी दा सार होंदी है। इस तो भाव जेड़ी भी पौड़ी विचारण लगिए, पहला रहाव की पंक्ति नूं सामने रखिए। गुरु पातशाह रहाव की पंक्ति च कह रहे ने, सुन पांडे। पांदा कौन होया? उस समय की बोली विच पांदा पढ़ाण वाले नूं, जिसने विद्या ग्रहण की हुई है, जो विद्या वंड रहा है, भावें विद्या धर्म की वंड रहा है ते भावें समाज की वंड रहा है, उसनूं पंडित, पांदा, ज्ञानी यह लफज कहे जाते सी। गुरु पातशाह ने जड़ों उस पांदे अगे सुन के आए, सुन पांडे क्या लिखो जंजाला। पांदा कुछ लिख रहा है ते पांदा किनू क्या है कि उस वेले किसी पंडित नू क्या सी, या उस वेले कोई जिस तरह विद्या विच निपुण सी ओनू क्या सी। आज पांदा कौन है? ते जे ए शब्द, जे इस बाणी तो मैं सुनिया लेना है, तो मेरे लिए पांदा कौन है? मेरे अंदर पांदा कौन है? मैं अगर बाहर विद्या वंडदा नहीं, मैं आम मनुख हाँ, मैं गृहस्थी जीव हाँ, मैं घर विच रहना वा, फिर मेरे लिए पांदा कौन है? मैं अपने ते इस शब्द नूं किवें टुकाना है? मैं इस विचों अपने आस्ते किहड़ा सुनेहा लैना है? इस ढंग नूं जो गुरु पातशाह ने
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਡਰਨ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਮਾਡਰਨ ਵੇਲੇ, ਮਾਡਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਂਡਾ? ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਹਾਂ ਵੱਡੀ, ਸੱਸ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਸ ਪੜੋਸ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਪੰਡਤ, ਪਾਂਦੇ, ਵੱਡੇ, ਗਿਆਨੀ, ਸਿਆਣੇ, ਤਜੁਰਬੇਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਮੰਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇਗਾ ਮੈਂ ਸਵਰਨਾ ਹੈ, ਹੱਲਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮੋਇਆ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਜ ਮਰੰਤੀ ਮਰ ਗਈ, ਘੂੰਘਟ ਕੋਲ ਚਲੀ। ਗੱਲ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਂਦਾ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋ ਗਈ? ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਰਤ, ਅਕਲ, ਮਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ
ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਔਰ ਅਕਲ ਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਂਦਾ ਮਨ, ਕਿਹੜਾ ਮਨ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ, ਇਹ ਲਿਖ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ। ਪਾਂਡਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੰਜਾਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਮੋਹ ਕਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਓ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿੱਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ। बड़े प्यार नाल सुनना। पाओ कलम, प्रेम दी कलम कर, प्रेम दी कलम नाल की कौन लिख रहा है? चित्त लिखारी। चित्त लिखारी है। चित्त किनू कहंदे ने? यादां। हुण एक वारी अपनी पड़चोल भी नाल नाल करिए। मेरे चित्त विच, मेरियां यादां विच कुछ लिखिया है, कुछ ऐसा लिखिया होया है मेरे चित्त विच जेड़ा मैं अज भी याद करना चाहां। उस एल्बम नू सामने कोई नहीं है, अपने अंदर अपनी चित्त रूप एल्बम नू मैं खोल के वेख सकदा वां। मैं लिखिया होया है, कदों किसी ने मेरे नाल धक्का कीता, कदों किसी ने मेरा दिल तोड़िया, कदों किसी ने मेरे नाल कोई ठगी कीती। कि चित्त विच लिखिया होया है। एल्बम खुल जाती है, याद करन लगिए तां गुरु पातशाह कहंदे ने चित्त लिखारी है। पाओ कलम कर चित्त लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। एक चित्त लिखदा है गुरु नू पुछ के, एक चित्त लिखदा है अपनियां सियाणपां नाल जंजाल। चित्त ने जंजाल लिखे हुए ने, चित्त ने अंदर ऐसे कलेश लिखे हुए ने। मैनू बाहरों दुखी कोई नहीं करदा। जदों मैं अपना चित्त फरोलदा हां ते रोंदा हां, देखो मैं दुनिया नाल किन्ना चंगा चंगा कीता, मेरे नाल सारियां ने ठगी कीती ते आप ही कल्ला रो पैना। कौन लिखारी? चित्त लिखारी। एनू गुरु पातशाह ने कहा
पाया किरत ना मेटे कोए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। अकल लीड करती है, मन पीछे पीछे तुरता है। लीडर अकल है, मन काम करता है। हुण जदों मन नूं सुरत लीड कर रही है ते मन नूं गुरु पातशाह कह रहे ने जिहड़ा तेरा लीडर है वो ते तैनूं जंजाल दे रहा है। जंजाल की हुंदा है? जिहदे नाल बन्ने होए ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ मैं अपना सुभाव बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? मेरा सुभाव मैनू बड़ा पसंद है। चित लिखारी ने वही काम कराए, मेरा सुभाव पक्का कर दिता। जदों ओहियो सुभाव पक गया, हुण उस सुभाव करके मैनू अपने आप नू बदलन दी गुंजाइश नहीं रही। सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, तू केड़े जंजाल लिखे हुए ने। ऐसे बाणी विच अगे जाके 38 नंबर पौड़ी ते करोगे। मन जंजाली वेड़िया भी जंजाला माहे। जंजाला नाल घिरिया होया है अपने ओ ख्याल ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅਕਲ ਨੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। सारिया सुरतां मैं जिदे नाल वरतो विहार करदा। असी समझते हैं असी मनुखा नाल वरतदे आ। गुरु पातशाह कहंदे ने असी सामने वाले दी अकल नाल वरतदे आ। असी समझते हैं असी किसी मनुख नाल डील कर रहे हैं। गुरु पातशाह कहते ने सामने वाले दे मन नाल डील कर रहे हैं। दो मनां दा आपस विच झगड़ा है, दो सुरतां दा आपस विच झगड़ा है। दोनों सुरतां अपने आप नूं सियाणा समझदियां ने, हस्बैंड वाइफ दी नहीं बनदी। क्यों? दो सुरतां सियाणियां बच्चियां नाल नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि बच्चे भी सियाणे हो गए ने। दो सुरतां दी लड़ाई है, दो अकलां दी लड़ाई है, दो मतां दी लड़ाई है। दो मत, दो अकल आपस विच बहस कर रही है। हर कोई अपने आप नू बेटर प्रूव करन दी कोशिश कर रहा है। उत्थे गुरु पातशाह कहंदे ने सब सुरती मिल सुरत कमाई। सारियां जिन्नियां सुरतां जिहदे नाल तू रोज रोज डील करना है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਅਕਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜੀਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ
ਆਪਣੇ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਿਤ ਸਵਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਪਾਂਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਟੀਚਰ ਏ? ਕੀ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨਿਤ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੂਜ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਪਾਂਡੇ, ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਜੰਜਾਲਾ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖ, ਬਟ ਕੀ ਲਿਖ। ਲਿਖ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿ। ਕੀ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਗੋਪਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸਲੇਟ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ, ਅਕਲ ਰੂਪੀ, ਮਤ ਰੂਪੀ ਸਲੇਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਚੜ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮਨ ਵੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਦਿਓ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਦਿਓ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਤ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਮਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਮਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਦੇਈ। ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਦੇਈ।
क्योंकि जे शब्द वाली मत ले ली फिर दुनिया नाल किवें गलांगे। बच्चा कहता है माँ प्यो जे तुहाडी अक्ल ले ली, तुहाडा लैक्चर ले लिया, मैं दोस्तां नाल घुम्मन किवें जावांगा। लेवल दोनों दा सीन है। जदों बच्चों नाल डील करिए एक अख अपने अंदर रखिए, मैं भी यही हाँ। बच्चा गलती करता है, माफी मंगता है, गलती छड्डदा नहीं है। मैं रोज आंदा गलती सेम करांगा, जाके सवेरे आके अरदास करके माफी मंग लांगा, बख्श दियो। अगले दिन एज इज। बदलन लई मैं नहीं आया, क्या लिखो जंजाला। जे मैं बदलन लई आया ते पहला की करांगा, कसूर मनांगा। फर्स्ट स्टेप, मैं अपने आप नू वेखांगा, भावें सामने वाला गलत है पर मेरी कितनी गलती है। कसूर दूजे पे सुटना सवारदा नहीं है, कसूर मनना मैनू सवारेगा। पहला स्टेप गुरु पातशाह कहते ने गलती मन्नी। की गलती कीती मैं, लाज मरंती मर गई, घूंघट खोल चली। मैं लाज नाल मरदी रहंदी सी, पहले मैनू लोक लाज सी, मैं दुनिया दे भा चलदी सी। इस करके दरवेशी, इस करके सेवक बनना, इस करके गुरु दी मत लेनी लफज की है, औखी है। गुरु वाला जीवन औखा है। क्यों? दुनिया भा नहीं चलन देंदा, दुनिया वांग नहीं चलन देंदा, दुनिया वांग दोस्तां वांग चलन नहीं देंदी। मां प्यो दी मत, गुरुदेव माता गुरुदेव पिता दी मत मैनू दुनिया वांग चलन नहीं देंदी। इस करके जीवन औखा है। जेड़ी पहला औखा कहंदी सी ओ बदल गई है अज दी पौड़ी विच। किज न बुझे किज न सुझे दुनिया गुजी पा, साईं मेरे चंगा कीता, नहीं ता हम भी दर्जा आ। हुण ओ नहीं सूझदा जेड़ा दुनिया पिछे चलांदा सी, हुण ओ नहीं मैं बूझदा जेड़ा दुनिया दी चाल मैनू पहले दुनिया दी चाल चलांदा है फिर रुआंदा है, दोनों काम करदा है। दुनिया दी नकल भी करदा हाँ, दुनिया दे नुक्स भी कढदा हाँ। साडा बच्चा साडा गल लैक्चर क्यों मनदा है? कारण तुसी जो कह रहे हो तुसी वैसे हो नहीं, इस करके तुहाडी गल लैक्चर है। तुसी मैनू कहंदे हो सारियां नाल प्यार नाल बोलो, पर तुसी मेरे सामने सारियां नाल प्यार नाल नहीं बोलदे हो। तुसी बड़े अच्छे वाले रोल मॉडल नहीं हो, इस करके तुहाडी हर गल मैनू लैक्चर लगदी है। जो तुसी कहंदे हो मम्मी पापा वो तुसी करदे नहीं हो। अज दे शब्द कहते ने मैं अपना कसूर मन्निया, मैं लोक लाज विच मरदी रहंदी सी, मैं हर वेले दुनिया वाल ही तुरदी रहंदी सी। गुरबाणी नूं ते मैं उंज मनदी सी जिवें दुनिया मैनूं मनवाना चाहती है। दुनिया ने क्या इंज पाठ करो मैं कीते, गुरबाणी ने मैनूं गुरु ने मैनूं की किया कि मैं जो धर्म दे राह ते तुर रहा हाँ ओ वाली सलाह मैं गुरु कोलों पूछ के लई जा। दुनिया ने क्या पड़चोल अपनी, एनू ही गुरु पातशाह ने किया मन जीते
जग जीत लभना ते पेगा ना। अज मन जग जीतिया ते जग जीतिया, पहले हारिया कित्ते सी? हार भी ते लब्बा, पहला हारिया होया से। दुनिया अगे हारदा कौन है? कमजोर मन। नकल कौन करता है? कमजोर मन। क्लास विच केड़ा बच्चा नकल करता है? जेड़ा पढ़ाई च कमजोर होता है। ओ नाल वाले नू हुशियार समझ के नकल करता है। असी दुनिया नू अपने तो सियाणा मनिया, इस करके नकल कीती। नकल भी कीती। कोई कारज हो जाए, देख लो तुसी, विआह होए, डेथ होए, बच्चा होए, कुछ होए, किनू पुछदे आ किंज की करिए हुण? दुनिया नू। गुरु नू पुछिया नहीं। गुरु नू पुछागा, गुरु दसेगा आनंद कारज, ते जेड़ा आनंद कारज गुरु दसदा है उस नू दुनिया पता केड़ा नाम देंदी है? सादा विआह। गल गुरु दी होवे ते सादा विआह होए, अमुल्लक ना होए। बोली भी गुरु दी नहीं है। गुरु दी मत नाल गुरु दे गुण, अमुल गुण, अमुल व्यापारी है, अमुल भंडार। कदी क्या परमात्मा दे गुण अमुल्लक ने? नहीं। खिमा अमुल्लक है? नहीं। धीरज अमुल्लक है? नहीं। नम्रता अमुल्लक है? नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने लफ्ज दिते ही नहीं। दुनिया ते कहती है नम्रता रखोगे सिर ते चढ़ जाएगा जी। मैं मान लिया, सिर ते चढ़ेगा, मेरा सिर ते निक्का जिहा किथे खड़ा करांगी सारी दुनिया नू। मैं झाड़दी नहीं, मैं नम्रता लैंदी। दुनिया गुरु पातशाह कहते ने खिमा गई मन सतगुर दिया, खिमा धन संग्रह। गुरु पातशाह धन, खिमा नू धन कहते, गुरु पातशाह खिमा नू अमीरी कहते ने। कि मैं मन्निया मैं अमीरी लैनी, मैनू अमीरी केड़ी चाहिदी है? चलना दुनिया पत परचोल अपनी लाज मरंती मर गई। जेड़ी लाज करदी सी, जेड़ी शर्म करदी सी, जेड़ी दुनिया कोलों डरदी सी, कुंड कौन कढ़दी सी? औरत। नहीं कढ़ागी ते बार दे नाराज हो जाणगे। ए ओ समा जिस वेले कुंड दी प्रथा सी, औरतां कुंड कढ़दियां सी। क्यों कढ़दियां सी? डरावा, दबदबा। गुरु नानक पातशाह ने कुंड तो कढ़ के की दिता? वो नहीं लिया, सिर्फ कुंड उतारिया। जो गुरु नानक ने दिता वो नहीं लिया। निर्भयता। पहला डरती सी स्त्री, स्त्री जात नहीं, सुरत रूपी स्त्री। इतिहास विच की है कि दिता गुरु नानक पातशाह ने सारी दुनिया नू? की दिता अजकल जिहड़ा असीं पढ़ रहे हां, 4 साहिबजादियां दी शहीदी, उन्हां दे विच की सी? जेड़े शहीदी देन तो भी ना चुके। डराए गया उन्हां नू, लालच दिते गए। लबो पड़चोलिए। मेरा मन डरदा भी है, कमजोर। मेरा मन लालची भी है, कमजोर। दिता कि गुरु नानक पातशाह ने सब तो पहला अकाल तखत निर्भयता, कलगी निर्भयता, दस्तार निर्भयता, नगाड़ा निर्भयता, रेशमी वस्त्र निर्भयता। निर्भयता नहीं लई, बाकी सब कुछ है। पर निर्भयता किवें आंदी है? डर जांदा है ते निर्भय हो जांदा है। डर दा जाना निर्भयता दा आना है। पर नाल दे नाल दूजा भी चलेगा। निर्भयता जा रही है ते डर आ रहा है। रोज रोज डर वध रहा है। या डर वधाइए या डर घटाइए, चूज असी करना है।
मन ने चूज करना है की चाहिदा है, सदीवी सुख या अलग सुख, कुछ देर का कुछ पलां दे सुख। जिस मन नू मन लिया मैं डरदा हां, डरन दा कारण मेरा नाम, मेरी हस्ती, मेरा वजूद गुरु दी मत क्यों नहीं लेंदा? सब तो बड़ा डर और कोई इतने बड़े डर नहीं ने, गुरु दी मत लैन लई सब तो ज्यादा डरदा है। जे मैं गुरु दी मत वाला जीवन ले लेता मेरा नाम मिट जाएगा, मैनू कोई नहीं पूछेगा, मेरे बच्चे नहीं ब्याहे जाणगे, साथे साथे मिलणगे लोकी। डर जेड़ी डरदी सी ओ मर गई, लाज मरंती मर गई, घूंघट खोल चली, घूंघट चुक दिता केड़ा होमे दा, हंकार दा, डर दा, दुनिया दे लोक लाज दा, घूंघट उच्चा कर लेता। फिर की कीती? चली। हुण चलना शुरू हुई है सच दे राह ते, हुण चलना शुरू हुई है धर्म दे राह ते। एनू गुरु पातशाह ने कहा धर्म, सच्चा धर्म, ओ धर्म जिहड़ा हर वेले जीविया जा सकता है, ओनू गुरु नानक पातशाह ने धर्म कहा। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। फिर सानू साडे बच्चे पूछन मम्मी पापा डिफाइन करो निर्मल करम, अपने अपने निर्मल करम ना डिफाइन करना। हर कोई अपने अपने निर्मल करम कहता है। ऐसी दी अगली पंक्ति है, करम पहली लाइन विच कहते ने करम, सेकंड लाइन विच कहते ने सगल किरिया में उत्तम किरिया। कर्म की है किरिया, काम करन दा तरीका की कर दुर्मत मल हिरिया। अपनी मैल दूर करदा जा ता धर्मी है तू। साडे कोल गलती की हो गई, एक एक पंक्ति दे लफज अलग अलग समझने शुरू कीते। जिस दिन एक पैराग्राफ दा एक मायना लभांगे, गुरबाणी दी विचार कीती हुई है। पहली पंक्ति धर्म निर्मल करम, दूजी पंक्ति किरिया, तीजी पंक्ति बाणी। जदों तू दुर्मत मैल अपने हिरदे तो मिटाएगा, तेरे मन का शोर मिटेगा, तेनू अंतर आत्मा तो वसदे परमात्मा की बाणी साफ साफ सुनाई देगी। तेरी जमीर की आवाज फिर तेनू लीड करेगी। पहला दुनियावी मत लीड करती सी, हुण अंदरों प्राप्त होने वाली सच्ची आवाज लीड करेगी। सच्ची आवाज क्यों नहीं सुनाई देंदी? मन दा शोर। सास दीवानी बावरी, सिर ते संकट टली। सास केड़ी? बाहर वाली। जे सुरत मां कीती है ते सुरत दी सस है। बाहर शरीर तो बाहर सस नू पेश किया गया सी जेड़ी डरांदी है ते डरा के दबदबे नाल काम करांदी है, ओनू बाहर सस कहंदे ने। पर गुरु पातशाह कहंदे ने जदों निक्का बच्चा जेड़ा विआहया ही नहीं गया ओदी सस केड़ी है? इत्थे ते सच दी गल है, हर किसी दी सस है, भावें अज दा जमदा बच्चा क्यों ना है, सस ते ओदी भी है, सच्ची सस। डरान वाली अक्ल नू सस क्या है? केड़ी मत नाल रहना है? डरान वाली अक्ल, ओनू सस, जिठानी, करूप मत, करूप मां, कुछ अज्जी पत्नी, ए लफज कहने। तेरे को दो अकलां ने, एक तेनू अंदरों आवाज आंदी है, जदों तू बहुत क्रोध कर लैंदा है ना,
फिर शांत होना ना एक पल लई ते कहंदा है ना करदा। ओ किन्ने क्या, ओ अंदर किन्ने क्या जिन्ने ए लफज दिते अज ना करदा ते माहौल साफ सुथरा शांत रहंदा। ओ अंदरों आवाज आई सी, ओ परमात्मा अंदर वसदे परमात्मा ने आवाज मारी। फिर वो जिठानी वाली सस वाली अक्ल की कहती है, सच्ची आवाज नु दबाती है, नहीं क्रोध करना जरूरी सी, नहीं कर दी ते इन्हां नू पढ़ावांगी किवें, बाहर किवें समझावांगी। अपने अंदर दोनों आवाजां नू पड़चोलो। जद तक दो आवाजां ने तद तक दो अकलां ने, जद एक मर जाएगी दोए माई दोए बापा पढ़िए पंडित करो विचारो। दो मावा तेरे अंदर हो पंडित, दो प्यो नी, संतोख भी ते असंतोख नी। की कर राम रवंता जानिए, एक माई भोग करे, एक मुकेगी ते केवल दूजी लीड करेगी, एक दा भोग पेगा। इस पौड़ी विच एक दा भोग पै गया। सास दीवानी बावरी सिर ते संक टली। जेड़ी शंके देंदी सी, जेड़ी भरम देंदी सी, जेड़ी अज्ञानता देंदी सी, ओ टल गई, ओ हट गई, ओ दूर हो गई। भरम की है? एक पंक्ति राही गुरु पातशाह ने एक जगह बिल्कुल क्लियर किया है, मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जद तक मेरा तेरा कहना है तद तक अज्ञानता है, तद तक परम है, तद तक जंजाला वालियां फाइयां ने। सिर्फ मेरा तेरा कहना इतना बड़ा कसूर है। मेरा बच्चा तेरा बच्चा, मेरा घर तेरा केरा, असी कहांगे ए गल अज्ञानता है, ए गल परम है, ए गल हुक्म ना बूझना है। हुक्म की है? मेरा तेरा ना कह होमे बन रही आ, मेरा तेरा वाली अकल मिटा दे। सर्व जिया मैं एको जाने, ता होमे कहे ना कोई। सारियां विच गुरु नानक पातशाह ने कहा निर्भयता किदे नाल आएगी। असी समझ रहे सी मेरा तेरा कहने नाल मैं वड्डा हो रहा हां, मैं समाजक हो रहा। गुरु पातशाह कहते ने कमजोर हो रहे हैं। जिस दिन मेरा तेरा कहने तो हट जाएगा, उस दिन निर्भयता दा बीज तेरे अंदर, तेरी हृदय रूपी धरती पे पै जाएगा। ओनू कहते ने नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी बेस। पहले हृदय रूपी धरती पे ओ बीज बो। सर्ब जिया मैं एको जाने, ता होमे कहे ना कोई। ए हुक्म है, सानू हुक्म दसिया गया, पता नहीं केड़ी आवाज। हुक्म होमे विच नहीं जीना, हुक्म है। मेरा तेरा नहीं कहना, हुक्म है। सारियां नू बराबर मनना, हुक्म है। जेड़ा सारियां विच इक मनेगा, ओ होमे नहीं कहेगा। नानक हुक्मी जे बूझे, ता होमे कहे ना कोई। सर्ब जिया मैं एको जाने, ता होमे कहे ना कोई। जदों होमे मिटी की प्राप्त होया, प्रेम बुलाई रली सियों, मन में शब्द अनाई। ओ प्रेम वाले पति ने सद्दा मारिया, होमे वाला शोर, मन दा शोर नाश होया। हर वेले जेड़ी आवाज उन लीड कर रही है, ओ की है? परमात्मा रूपी पति दे सद्दे। ओ मैनू सद्दे दे रहा हुण ओ हर वेले लीड कर रहा है। प्रेम बुलाई रली सियों, हुण गुण कह गुणी समावणिया। मन मर गया, सुरत मर गई,
पर प्राप्त की हो गया, एक मरिया ते भी प्राप्त भी कुछ होया है। धीरज, संतोख, नम्रता, मन दी शकल नाश, रूप नाश, नाम नाश, गुणा का रूप प्राप्त। हुण गुणा का रूप जब प्राप्त हो जाता है, गुणा वाले रूप नाल अंतर आत्मा विच वसदे परमात्मा गुणा दे खजाने विच रलिया। प्रेम बुलाई रली सियो, हुण अंतर रलदी जा रही है, गुणा विच रलदी गई, मन में शब्द आनंद। मन विच सच्चे दा शब्द आनंद वाला गूंजन लग पिया। लाल रती लाली पई, गुरमुख पई निचिंद। गुणा दी लाली, लाली की हुंदा है? लक्कड़ जदों सुत जलदी है, एक काली हुंदी है, एक लाल हुंदी है। चॉइस तेरी है। जे तेरी ओ वाली सूरत जेड़ी तू दुनिया तो लई, ओ सड़दी रहंदी है, काली रहंदी है। ते जे हर वेले ज्ञान दी अग नाल दुनियावी मत नूं साड़दा रहेगा ते की रहेगा? अग वकन पकदा लाल रहेगा। लाल रहना ही या काला रहना ही, चुन ले। चॉइस दे रस्ते ने गुरमुख गुरु दी प्रधानता, मनमुख मन दी प्रधानता। तेरी हृदय रूपी सृष्टि का प्रधान कौन है? तेरा मन या गुरु दा शब्द? जदों गुरु दा शब्द प्रधान है ता हर वेले परमात्मा हाजिर हजूर है। लाल रती, कच्चा मन पक गया। पकियाई दे के कच्चे मन नूं नित नित पहले कच्चाई दिखाई, फिर कच्चाई दूर कीती, फिर गुणा नाल पक्का कीता, दृढ़ता दिती, हुण नवा सुभाव घड़ दिता। तिथे कड़िए सुरत मत मन। जदों सुरत मत मन बुद्ध कड़नगे ते की कड़नगे? असल विच सुभाव। पहला सुभाव डोलदा सी, हुण केड़ा सुभाव? एक सुभाव। हमेशा एक सुभाव विच निशानी, माइलस्टोन। बाहर दे नाल सुभाव बदल लेना है या गुरु दी मत नाल जुड़िया होया एक सुभाव विच रहना है, लभना शुरू कर। लाल रती लाली पई, गुरमुख पई निचिंद। निश्चिंत कर दिता, बेपरवाह कर दिता, दुनिया दी मोहताजी तो कढ लिता। पहला दुनिया ते डिपेंडेंट है, प्रेम लई, खुशी लई, इज्जत लई, हर किसी अगे मन रूपी कटोरा लेके भीख मंगदा रहंदा है। प्यार कर दियो, इज्जत दे दियो, प्यार कर दियो, इज्जत दे दियो। इज्जत बाहरों मिलती है, प्यार बाहरों मिलता है। जब तक बाहरों मिलता है तो बाहरों लुटिया भी जाता है, आना जाना रहेगा। ते जदों अंदरों मिलेगा प्यार, जदों तेरे तो मिलेगा प्यार, जदों तेरे तो इज्जत मिलेगी, तो वो कोई लुट सकता है, वो कोई खो सकता है? गुरु नानक पातशाह हरेक दी सुरत नूं कढ के किहड़ी हाइट दे रहे ने। एनू क्या प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभु दी याद ने सारिया दुनियावी मतां तो ऊंचा कर दिता है। गुरु की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। गुरु ने अपना बना लिया है, गुरु दी गलवकड़ी च आ गया। हर वेले गुरु मेरे संग सदा है, नाले वाला जीवन दे दिता है गुरु ने। ता लाल रती लाली पई, गुरमुख पई निचिंद।
सुन पांडे क्या लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला। एन गुरु पातशाह ने सिरी राग विच लिखिया कि मैं हुण ओ वाले लेखे नहीं लिखदा, ओ वाले लेखे हुण की हो गए ने, मिट गए ने। नानक जिनको सतगुरु भेटिया, तिनका लेखा निबड़िया। लेखे निबड़ गए मेरे जीउंदे जी। पहला कह रहा सी पया कीर्तन मेटे कोए, हुण कहंदा लेखा ही निबड़ गया। धर्म राय दर कागज फाड़े। दोनों अवस्थावां जिउंदे जी ने, दोनों शब्द गुरबाणी विच ने। चूज कर लेखा लिखवांदे रहना ही। जदों लेखा लिखवांदा है ते परमात्मा नूं छत ते मनदा है, मरण तो बाद मिलेगा। जदों लेखा मिटवाना है, परमात्मा हुणे है, हर वेले है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाऊं, कल कलेश तन माहे मिटाऊं। मिटवा ले, हुणे मिटवा ले, मरण तो बाद मिटवाएगा जाके। चलिया मूर्खा, पंडित भी है ते मूर्ख भी है। सो गुरु दे शब्द विलखण कहिए ना, विलखणताई नो महसूस करके विलखण जीवन जीविए। सो गुरु अगे अरदास करिए। समा हो गया, असी सारे रल के ओ वाले सिख बनिए जिहड़े गुरु नानक पातशाह ने जिस लई सिख साजिया, सिख तैयार किया। निर्भयता समाज विच जीविए, निर्भो होके धर्म निभाइए, निर्भो होके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की